Yes, good morning. To Dr. to Dr. अभिषेक शर्मा जी, उनका मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स आपके सामने देना चाहती हूँ. आप लोग ध्यान से सुनिए. Okay, I think I audible? Yes. Okay. So Dr. Abhishek Sharma specialized in industrial and organizational psychology and worked extensively in the area of organizational, cultural, and climate, job attitudes, individual outcomes, and well being. With more than 9 years of teaching experience in prestigious organizations like Banasthali University and Indian Institute of Management, Raipur, currently he is serving as Associate Dean, Faculty of Management and Behavioral Sciences at the Sardar Patel University of Police Security and Criminal Justice, Jodhpur, India. Dr. Sharma has published more than 28 papers in national and international journal published by Sage, Springer, Scopus, Woz, and ABCD indexed and written 8 chapters in book published by national and international publishers, including Macmillan, Emerald, Bloomsbury, Excel. He has also authored one book, Employee Prospects, Making and Breaking of Organizations. He is having research collaboration with the academicians of the world's top institutes, including the University of Queensland, Australia, Manchester University, UK, and James Cook University, Singapore. He is actively contributing to research felicitations, work as member of the editorial panel of national and international journal and editor-in-chief of UGC Care listed journal, Humanities and Social Sciences Studies. He has received recognition in the form of award for publication, presentation, article writing, and micro teaching. Dr. Sharma is a managerial skill, life skills, and well being coach and is engaged in training and consultancy. He has organized managerial skills and leadership training program for various public and private organizations, leading Leap Green Energy Private Limited, IOL, Rajasthan Police, Rajasthan State Judicial Academy, Rajasthan Government Prison, AMPGC, Vanasthali University, AIMS Jodhpur, IIT Jodhpur, NIT Kurukshetra, JNVU, LIPS Counseling Cell, Higher Education Department Jammu, various other academic institutes and central government organization DRDO, CEPTM, DRTC, Northeastern Police Academy, NABARD, MSME, National Productivity Council, and MHRD initiatives under TQIP and PMMNT, etc. So, sir, welcome again. आपकी उपलब्धियां, no doubt it's great to read out such a rich CV. स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूंगी कि ये आपके लिए बहुत ही प्रिविलेज्ड, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर शर्मा आज आप लोगों के लिए समय निकाल करके आपके इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के ग्रुप में आए हैं वर्चुअल क्लास लेने. वर्चुअल तो है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं चाहूंगी कि जिन लोगों के भी माइक खुले हुए हैं वो कृपया करके सबसे पहले तो अपना माइक्रोफोन माइक्स बंद कर दें ताकि ध्यान से आप लोग सुन सकें. एनीवे मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स की जिस चीज के लिए आज आप पहला स्टेप ले रहे हो, अपना प्री पीएचडी कोर्स वर्क अटेंड कर रहे हो, उससे बहुत आगे आपके एक्सपीरियंसेस हैं डॉक्टर शर्मा के. अभिषेक जी अभी आपको बहुत सारे रिसर्च के जो इम्पोर्टेंट टेनेट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, जो ज्यादातर गलतियां शुरुआत के जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी करते हैं और जो बहुत लंबे से कार्य कर रहे होते हैं वो भी करते हैं. तो मैं चाहूंगी कि इस लेक्चर को आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाते हुए, ये नहीं कि केवल आप स्क्रीनशॉट लेते चले, आप अपनी रजिस्टर पे, बुक पे, जहां भी चाहें आप नोट्स जरूर बनाएं. और ये जो भी डिस्कशन होता है वो लास्ट में करें. जैसे आप लोग लेक्चर चल रहा है
तो बीच बीच में मत डिस्टर्ब करें, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको नोट डाउन कर ले, और लास्ट 20 मिनट्स में आप अपने जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। वैसे तो टाइम 1:30 to 1 है, लेकिन इन एनी केस अगर आपका 1:30 भी हो जाता है तो 1:25 भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1:30 से फिर दूसरी क्लास अरेंज्ड है। तो मैं चाहूंगी कि सर बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको वेलकम करती हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेक्चर को शुरू करें। थैंक यू सर, Thank एंड you. वेलकम अगेन। Thank you. Thank you so very much, Dr. Abha Singh, and people who are involved in organizing this lecture. So I'm really thankful. मुझे एक प्लेटफॉर्म और मिला है जिससे मैं यंग रिसर्चर्स से बात कर सकता हूँ. यस So I'm very happy about it, and I'm very hopeful that we'll be able to have a meaningful discussion. As Dr. Singh told कि आप अपने questions, queries, confusion जो भी हो, please note down. और जो हमारा एंड का पोर्शन होगा लेक्चर का, विल बी एबल टू डिस्कस दैट. ठीक है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. आप आराम से नोट करें, आराम से पूछें, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें. ठीक है, क्योंकि माइनर कंफ्यूजन बिकम्स मेजर प्रॉब्लम व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी सीरियस वर्क लाइक डूइंग रिसर्च. सो विद ऑल योर परमिशन, मे आई स्टार्ट? यस सर, गो अहेड. यस Okay. यस. Okay, so my presentation is visible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Somebody may respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so to enhance the connectivity, I'm switching off my video, and okay, so let's start with the session. So आज का जो हमारा session है, it is basically targeted to discuss about variables, different kind of variables, and at the end, control of variables. So this control is again very important. Not only understanding variable is important, but control is also very important. So the very important thing is we are doing research, and research is a serious job. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This serious job needs a serious understanding about issues which will be there when you will start doing research. So maximum चीजें आप बेसिकली पढ़ चुके हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट है. हम कोशिश करेंगे कि जो आज का रिसर्च वर्क है उसको ध्यान में रख के जो वोकेबलरी अबाउट वेरिएबल्स यूज की जाती है, जो कंसर्न्स और जो क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है वेरिएबल्स के लिए, हम उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा रखेंगे. सो हम जानते हैं कि जो बेसिक पर्पस है रिसर्च का, दैट इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन फेनोमेना, इंसिडेंसेस, सिचुएशन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये वो सारी चीजें हैं जो पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करती हैं, एंड दैट्स व्हाई these things broadly are called as variables. Okay, so this variable thing is the content which we are going to discuss today. Variables are therefore the names that are given to the variance we wish to explain, and it is very critical in research. क्योंकि हम यही तो देख रहे होते हैं कि पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन क्या वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, चेंजेस क्या हो रहे हैं और किन चेंजेस को हम स्टडी करना चाह रहे हैं. सो वी नो कि हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इन साइकोलॉजी और इन सोशियोलॉजी वी बेसिकली ऑब्जर्व पीपल. हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के लिए वी यूज ऑब्जर्वेशन, और टूल्स कई सारे हो सकते हैं. तो हम पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स, और हमारे टूल्स कुछ भी हो सकता है. हमने कहा सर्वे हो सकता है, क्वेश्चनर हो सकता है, इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है. सो ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इंटरेस्ट की होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती हैं. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो अक्रॉस पार्टिसिपेंट, सारे पार्टिसिपेंट्स में, सारे सिचुएशन में स्टेबल रहती है, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा. बेसिकली हमारा कंसर्न क्या होता है
कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वैरी कर जाती है पर्सन टू पर्सन या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन जो वेरी कर जाती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि चेंज के कंटेक्स्ट में आउटकम में क्या चेंज आ रहा है बेसिकली इसी को हम स्टडी कर रहे होते हैं. सो पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली या सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. सो द प्रोसेस ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च, इसका जो गोल है वो गोल है आइडेंटिफाई करना इश्यूज को, इश्यूज के कंटेक्स्ट में वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना और वेरिएबल्स को स्टडी करना सो दैट कि आप एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंच सके और लिटरेचर, थियरी और प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट कर सके. सो हियर कम्स द मेजर थिंग कि ये जिसको इतनी देर से हम कह रहे हैं कि सिचुएशन में कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती हैं, वो है क्या, वेरिएबल है क्या. तो कर्लिंगर ने इसको बहुत simply define kiya hai that a variable is something that varies. So if any characteristic is constant, that cannot be matter of study. Anything which varies is a matter of study. वो हमारा कंसर्न है, वो हमारा इंटरेस्ट है. हम ये देखना चाहेंगे कि वो खुद वैरी होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स खुद वैरी करती है, किसी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, या वो कैरेक्टरिस्टिक किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होने की वजह से वेरी करती है. बट एनीथिंग विच वेरीज, जिसकी मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंज आ सकता है, वो वेरी करती है और वही वेरिएबल है. एग्जाम्पल के लिए आप देखें, एज है, सेक्स है, एक्सपोर्ट है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, फैमिली साइज है या कंट्री ऑफ बर्थ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्लास के ग्रेड्स हैं, ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स है, या प्रोस्पेक्टिव एंजाइटी का लेवल्स हम लोग क्वेश्चनर्स यूज करते हैं, आई का कलर है, व्हीकल टाइप है, ये सब वेरिएबल्स के एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है, डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो इंडिविजुअल टू अनदर, सिचुएशन टू सिचुएशन. सो इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज वेरिएबल. अब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप इसको कॉन्सेप्ट से अलग करें. ठीक है ना. कॉन्सेप्ट और वेरिएबल में देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. सो जो कॉन्सेप्ट और वेरिएबल, कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि कोई एनी इमेज परसेप्शन अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट, और वेरिएबल इज समथिंग व्हिच वेरीज. सो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे कॉन्सेप्ट और वेरिएबल के बीच में, so measurability is the main difference between a concept and a variable. Concepts basically mental images होती हैं या perceptions होता है, and therefore their meanings vary markedly from individual to individual. तो आप उसको ना concept को उसको measure करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें उसके indicators में concreteness नहीं, उसके understanding में concreteness नहीं. तो वो जो है उसकी meaning ही vary कर जाती है. हमें मेजरमेंट में वेरिएबलनेस चाहिए, लेकिन वेरिएबल जो है वो मेजरेबल होता है. किसी कॉन्सेप्ट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है. अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी मेजर्ड, whereas a variable can be subjected to measurement. अब ये जो मेजरमेंट है ये क्रूड हो सकता है, रिफाइंड हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आप लेते हो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल के, उस पे हो सकता है. स्क्रीन पे आप देखें देयर इज टेबल 1, और जिसमें हमने एग्जांपल्स यूज किए हैं कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स के. अगर आप इफ यू लुक एट दीज एग्जांपल्स, द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट, you may have a confusion that we measure these things, whether it is satisfaction or achievement or self-esteem or domestic violence. We measure these things. So how I'm saying that concepts cannot be measured, you need to understand. जैसे हम साइकोलॉजी में बात करते हैं ना कि मोटिवेशन है, सो यू कैन नॉट मेजर मोटिवेशन डायरेक्टली, मोटिवेशन इज अ कॉन्सेप्ट. सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू वेरिएबल. तो कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल में चेंज करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. तो आप कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे? आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं या फिर थ्रू अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स कर सकते हैं, जिससे कि ये मेजरेबल हो जाए. स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? नो सर, बहुत छोटी नो सर।
अभी It is visible. सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। screen is not visible to you guys? No, नहीं sir. सर No, स्क्रीन sir. नहीं It is दिखा visible. रही है। Not visible. Just a minute. Just a minute. चल नहीं रहा सर. दिखने लगी सर? Screen यस सर visible है? Yes, Yes, it is visible. Okay. So जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को इंडिकेटर में चेंज करेंगे जब आप, और उन इंडिकेटर्स को जब आप असेस करते हैं, उन इंडिकेटर्स की वेरिएबिलिटी देखते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं और उस वेरिएबल को असेस करना पॉसिबल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर की एक अंडरस्टैंडिंग है। अब ये रिच और पुअर एक सब्जेक्टिव इंप्रेशन है, हु इज रिच, हु इज पुअर। अनलेस यू डिफाइन इट, अनलेस यू ऑपरेशनलाइज इट, आप इसको असेस नहीं कर सकते सब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से कौन अमीर है? अब मेरे हिसाब से जो अमीर है, क्या वो अंबानी के हिसाब से अमीर है? नो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ये जो सब्जेक्टिव इंप्रेशन है, इस सब्जेक्टिव इंप्रेशन को आपको स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के लेवल पे लाना पड़ेगा। तो आप रिच या पुअर को डिफाइन करने के लिए यू कैन यूज सर्टेन इंडिकेटर्स लाइक इनकम हो गया या वैल्यू ऑफ एसेट्स हो गया। मेरी टोटल संपत्ति कितनी है, चल अचल संपत्ति इसको कहते हैं ना। सो मेरी टोटल चल अचल संपत्ति कितनी है, या मेरी इनकम कितनी है। अब क्या होगा कि ये जो इंडिकेटर लिए हैं आपने, इन इंडिकेटर्स में वेरिएबिलिटी पॉसिबल है। जैसे टोटल इनकम पर ईयर आपने कर लिया, तो टोटल इनकम मेरी कुछ और हो सकती है, किसी और की कुछ और हो सकती है। मेरी इनकम इस साल कुछ और हो सकती है, अगले साल कुछ और हो सकती है। सो इसमें वेरिएबिलिटी पॉसिबल है, क्लियर है, और इस वेरिएबिलिटी को मेजर किया जा सकता है। सो इन अ वे यू स्टार्ट फ्रॉम इंडिकेटर, और फिर उस इंडिकेटर को असेस करते करते आप वेरिएबल तक पहुंच जाएंगे, और वेरिएबल जो है उसकी स्टडी करना पॉसिबल है, क्योंकि उसमें वेरिएशंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। उसके वेरिएशंस को आप क्लियर कट स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमने डिसीजन लेवल, यहां पर एक जो लास्ट कॉलम आप देखेंगे, तो डिसीजन लेवल जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि हम लोअर इनकम लेवल क्या रखेंगे, सपोज दैट 2 लाख पर एनम और 4 लाख पर एनम। मिडिल इनकम हम क्या रखेंगे, 4 to 6 लाख और 8 लाख पर एनम। और हायर इनकम कैटेगरी क्या रखेंगे हम, 8 लाख एंड अबव। सो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट से शुरू करके वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्शन है, कॉन्सेप्ट एक मेंटल इमेज या इंप्रेशन है। उसको स्टडी करने के लिए, उसकी क्लियर कट स्टडी करने के लिए, सो दैट यू कैन कंक्लूड समथिंग एंड यू कैन कंक्लूड क्लियरली, यू नीड टू आइडेंटिफाई सर्टेन इंडिकेटर्स, और फिर उन इंडिकेटर्स की वेरिएबिलिटी को आप डिसाइड करेंगे, और उसका मेजरमेंट जब आप करेंगे तो बेसिकली यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्सेप्ट एंड रीच टू द लेवल ऑफ वेरिएबल। और अब इसकी स्टडी करना पॉसिबल है, इससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना पॉसिबल है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? वी स्टडी सो मेनी थिंग्स, है ना। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल है, आज से अगर आप 10 साल पहले या 15 साल पहले के रिसर्च वर्क को देखते, सो इट वाज it was easy to understand the classification of variables. The research is becoming complex day by day, तो उसकी वजह से जो classification of variables है और the kind of variables we are encountering within our research work, ये complex होता गया है। तो चूंकि इसकी complexity बढ़ती गई है, kinds of variables जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो चेंज होते गए हैं, उसकी वजह से जो classification of variable है वो भी अब काफी हद तक चेंज हो गया है। तो अगर आप वेरिएबल्स की टोटलिटी को समझें और उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो बेसिकली 3 तरह के क्लासिफिकेशन पैटर्न है या क्लासिफिकेशन वेज हैं जिनके आधार पर आप वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। द फर्स्ट इज कॉजल रिलेशनशिप, यानी व्हाट यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। आप रिसर्च में चीजों के बीच, कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच अगर संबंध देखना चाह रहे हो, कारणात्मक संबंध देखना चाह रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, तब उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी के कंटेक्स्ट में कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये पहला क्लासिफिकेशन का तरीका है।
दूसरा है स्टडी डिजाइन। आप स्टडी कैसे कर रहे हो, आप जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, जिस अप्रोच को आप यूज कर रहे हैं, उस अप्रोच के हिसाब से भी वेरिएबल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। और तीसरा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जो भी वेरिएबल आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो, उस वेरिएबल का जो असेसमेंट होगा, उस पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्टडी होगी, वो स्टडी आप किस लेवल पे करेंगे, कैटेगराइज करके करेंगे या प्योरली न्यूमेरिकल फॉर्म तक ले जाकर करेंगे। सो ये 3 तरीके हैं बेसिकली जिनके आधार पर आप वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एंड ये बेसिकली एक टेबल है जिसको आप अगर थोड़ा सा मेमोराइज कर लें तो इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। जैसा मैंने बात किया कि एक है कॉजल मॉडल जिसके आधार पर आप सर्टेन वेरिएबल्स हैं, दूसरा है स्टडी डिजाइन जिसके आधार पर सर्टेन वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन है, और तीसरा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन टाइप 1, दैट इज कॉजल रिलेशनशिप। जब आप देख रहे होते हैं, यानी जो आपका पर्पस है, दैट इज to understanding and establishing relationship between characteristics technically called as variables, उसके आधार पर कौन कौन से वेरिएबल्स आपके रिसर्च वर्क में हो सकते हैं। सो आप अगर इस कॉजल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपको 4 तरीके के वेरिएबल्स मिलेंगे। 4 sets of variables may operate into that study. The first is called as change variables. अब चेंज वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में या फेनोमेना में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे वेरिएबल्स को चेंज वेरिएबल्स कहते हैं। यानी आप किसका इंफ्लुएंस देखना चाहते हैं, वैसा वेरिएबल चेंज वेरिएबल होगा। दूसरी कैटेगरी के वेरिएबल है आउटकम वेरिएबल्स। आउटकम वेरिएबल्स इफेक्ट्स हैं, बेसिकली इंपैक्ट है या कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, किसी भी स्टडी में आप कुछ आउटकम देख रहे हो, कुछ इफेक्ट देख रहे हो, कुछ इंपैक्ट देख रहे हो, वो वेरिएबल्स आउटकम वेरिएबल है। तीसरे तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अफेक्ट और इन्फ्लुएंस वेरिएबल। ये जो अफेक्ट और इन्फ्लुएंस वेरिएबल होते हैं, ये लिंक करते हैं। जिसका इन्फ्लुएंस आप देख रहे हो दैट इज कॉज, एंड जिस पे इन्फ्लुएंस आप देख रहे हो दैट इज इफेक्ट, उसके बीच में इस कॉज और इफेक्ट को लिंक करते हैं ये वेरिएबल्स। इनको हम अफेक्ट और इन्फ्लुएंस वेरिएबल कहते हैं। और चौथे तरह के वेरिएबल होंगे कनेक्टिंग और लिंकिंग वेरिएबल्स। ये कनेक्टिंग या लिंकिंग वेरिएबल्स जो है वो स्पेसिफिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि अगर ये वाला होगा तब तो कॉज इफेक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा, और अगर ये वाला नहीं होगा तो कॉज इफेक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये 4 तरीके के लेमन या सिंपल वर्ड्स में क्लासिफिकेशन है। इनके टेक्निकल नेम्स हैं और हम उन टेक्निकल नेम्स की बात करेंगे। जिसको हम चेंज वेरिएबल कह रहे हैं, बेसिकली इन रिसर्च टर्मिनोलॉजी चेंज वेरिएबल्स आर कॉल्ड independent variables. Change variable are called independent variable, and outcome or effect variables are called as dependent variable. And I'm sure that this terminology, independent and dependent terminology, is you guys are familiar with it. तीसरे और चौथे कैटेगरी के वेरिएबल जिसको हमने अफेक्ट और इन्फ्लुएंस वेरिएबल कहा है, ये है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और जो कनेक्टिंग और लिंकिंग वेरिएबल है उसको हम टेक्निकली कहते हैं इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स। अब हम एक एक करके इन सारे वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी भी चेंज का कारण होता है। दिस इज द कॉज सपोज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन अ फेनोमेना और सिचुएशन। The variable that is used to describe or measure the factor that is assumed to cause or at least influence the problem or outcome, that is called as independent variable. So ये जो independent variable है ना, इसको context change हो जाएगा, आपका जो way of research जब आप change करते हो तो sometimes it is called as predictor variable, या कभी कभी इसको regressor भी कहते हैं, या manipulated variable भी कहते हैं, explanatory variable भी कहते हैं, exposure variable भी कहते हैं. So there are different names. इट डिपेंड्स कि आप रिसर्च का कॉन्सेप्चुलाइजेशन और कंटेक्स्ट क्या है। लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इस वेरिएबल की, जो इसका कैरेक्टर है, वो यही रहेगा कि वो चीज का कारण होगा, इन्फ्लुएंस का कारण होगा। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रॉडली।
जो दूसरी कैटेगरी का वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम और चेंज ब्रॉट आउट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डालते हो तो जो चेंज आता है, जो आउटकम दिखता है, वो चेंज या वो आउटकम या वो इन्फ्लुएंस ही डिपेंडेंट वेरिएबल है. द वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और मेजर द प्रॉब्लम और आउटकम अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. ये जो वेरिएबल होता है, यूजुअली यही वेरिएबल इन जो रिसर्चर होता है उसका इंटरेस्ट होता है. The researcher is basically trying to understand, explain or predict this thing only. यही तो वो देखना चाह रहा है, यही उसका मेन इंटरेस्ट है. और डिपेंडेंट वेरिएबल भी जैसे आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ स्टडी है, अगर वो चेंज हो जाए तो सब कभी कभी इसके नाम बदल जाते हैं. कभी इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिग्रेस, प्रिडिक्टेड वेरिएबल, मेजर्ड वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल, ऐसे बहुत सारे नाम है. लेकिन अगेन यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि नाम चाहे चेंज हो जाए, जो बेसिक कैरेक्टर है इस वेरिएबल का वो सेम रहता है, दैट इट इज आउटकम. ये किसी चेंज को जिसको रिसर्चर ने इंट्रोड्यूस किया है, ये किसी कैरेक्टरिस्टिक के इन्फ्लुएंस की स्टडी है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आउटकम होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस होगा. ये कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, नाम चेंज हो सकता है. सो होता क्या है कि इन अ कॉजल रिलेशनशिप द कॉज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इफेक्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे मान लो एग्जांपल लो कि अगर हम हाइपोथेसाइज करें कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. ठीक है. तो स्मोकिंग कॉजेज कारण है, तो स्मोकिंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैंसर आउटकम है, तो कैंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल. एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इमेजिन करिए दैट अ ट्यूटर आस्क्ड 100 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ मैथ्स टेस्ट एंड द ट्यूटर वांट्स टू नो व्हाई सम स्टूडेंट परफॉर्म बेटर देन अदर्स. Whilst the tutor does not know the answer to this, she thinks that it might be because of two reasons. First, some students spend more time revising for their test, and some students are naturally more intelligent than others. So as such, the tutor decides to investigate the effect of revision time and intelligence on the test performance of the 100 students. तो अगर आप इस एक स्टडी में, इस एक छोटे से रिसर्च प्लान में आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे, you will be able to identify it clearly that in this context independent variable is revision time. तो उसको आप कैसे मेजर करोगे? अगेन यूनिट्स तक जाना पड़ेगा आपको. उसको आप कैसे मेजर करोगे? मेजर्ड इन आवर्स. दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इंटेलिजेंस. नाउ अगेन इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट, तो इसको आपको वेरिएबल तक लाना पड़ेगा. यू कैन यूज IQ स्कोर्स. सो ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा टेस्ट मार्क. वो आपका मेजर्ड हो सकता है, 100 के स्केल पे आप ले सकते हो, व्हाटएवर इट इज दैट. सो इस एक कंटेक्स्ट में भी यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि एक कारण है और दूसरा प्रभाव है. एक कॉज है, दूसरा इफेक्ट है. कॉज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफेक्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर हम इन दो स्टडीज को देखें कि सपोज दैट स्टडी ऑफ टीचर स्टूडेंट क्लासरूम इंटरेक्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूलिंग और a comparative study of the professional attitudes of secondary school teachers by gender. तो आप जो पहला स्टडी प्लान है, उस पहले स्टडी प्लान को अगर बहुत ध्यान से if you will observe, you will be able to conclude, you will be able to reach a conclusion that the independent variable is level of schooling. ठीक है. अब ये level of schooling again आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज और कॉलेज. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा स्कोर ऑन अ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन्वेंटरी. ठीक है, जिसमें आप टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को देख सकते हो. जो स्टडी प्लान 2 है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स बाय जेंडर. इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आप
आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जेंडर ऑफ द टीचर, मेल और फीमेल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका वो होगा स्कोर ऑन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड इन्वेंटरी. वी यूज इन्वेंटरी, वी यूज क्वेश्चनर्स. सो इन एनी रिसर्च जिसमें भी आप कॉन्सेप्चुलाइज करो, वेदर यू आर हैविंग हाइपोथेसिस और नॉट, वेदर यू आर हैविंग अ क्लियर कट डायरेक्शन और नॉट, हर स्टडी में there is something which is cause and there is something which is effect. Cause is called as independent variable and effect is called as dependent variable. And ये जो cause और effect है, sometimes we do correlational research. तो correlational research के context में predictor और criterion variables word use कर लेते हैं. But the nature of the variable is same. That one thing is there which is generating certain influence and one thing is there which is getting influenced. सो हमने बात की कि चाहे आपका कंटेक्स्ट और जो प्लान ऑफ स्टडी है, वे ऑफ स्टडी है, इसके चेंज से वेरिएबल्स के नाम चेंज हो सकते हैं, जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, दैट रिमेन्स सेम. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस क्लासिफिकेशन, दिस काइंड ऑफ वेरिएबल, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिसर्च वेरिएबल्स. सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अलावा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स वी यूज और वी फाइंड इन आवर स्टडी. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज एक्सट्रेनुअस वेरिएबल. एक्सट्रेनुअस वेरिएबल, तो बहुत दूसरे तरीके के वेरिएबल्स भी होते हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन में इफेक्ट करते हैं कि कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है. सो दीज फैक्टर्स नॉट मेजर्ड इन द स्टडी may increase or decrease the magnitude or strength of the relationship between independent variable or dependent variable. तो ये जो extraneous variables होते हैं ये कंसर्न नहीं है. रिसर्चर बेसिकली इसको स्टडी करने नहीं बैठा था. अगर सामने एग्जांपल आप देखें स्क्रीन पे तो यू विल बी एबल टू सी दैट कि जो रिसर्चर है उसका कंसर्न ये है कि स्मोकिंग कैंसर कॉज करता है या नहीं करता है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अज्यूम्ड कॉज हो गया स्मोकिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज अज्यूम्ड इफेक्ट इज कैंसर. तो रिसर्चर इन दिस काइंड ऑफ रिसर्च और इन दिस काइंड ऑफ रिसर्च आइडिया, रिसर्चर का इंटरेस्ट ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं स्मोकिंग और कैंसर के बीच की रिलेशनशिप को देखना है. बट इट इज नॉट दैट सिंपल. Only smoking is not going to influence the probability of having or developing cancer. There are certain other variables also. There are certain other conditions also, characteristics also that can influence the relationship between smoking and cancer. So now, अब ये जो दूसरी conditions हैं, ये जो दूसरी conditions हैं जो smoking और cancer के बीच के relationship को influence कर सकती हैं, that are called as extraneous variable. Extraneous variables are factors that affect the dependent variable, but the researcher did not originally consider when designing the experiment. So these unwanted variables can unintentionally change a study's result or how a researcher interprets those results. So इस स्टडी का जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्मोकिंग और कैंसर के बीच की रिलेशनशिप को पर्सन की एज, कितनी ज्यादा स्मोकिंग करता है वो, कितने दिनों से स्मोक कर रहा है वो, उसके अलावा उसका जो बिहेवियर है, फिटनेस बिहेवियर, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, डाइट, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. एंड देयर आर सर्टेन स्टडीज विच टेल दैट कि ये जेनेटिक भी हो सकता है. सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, भले ही रिसर्चर इनिशियली उसको स्टडी करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, या वो रिसर्चर का कंसर्न था या नहीं था. सो दिस काइंड ऑफ वेरिएबल जो बीच में आ जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल. नाउ ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ये अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अगर क्लियर कट पता हो तो रिसर्चर उसके लिए अलग से प्रोविजन करता है सो दैट कि जो रिलेशनशिप है जिसकी वो स्टडी कर रहा है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके, जो आउटकम्स हैं वो ज्यादा क्लियर हो सके. तो उसकी बात हम करेंगे, वो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल कंटेक्स्ट में उसकी बात करेंगे. बट जनरली एक्सटर्नल वेरिएबल्स अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस करते हैं और
रिसर्चर को उनको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी के वेरिएबल्स हो सकते हैं, जब आप रिलेशनशिप देख रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो चौथी तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, दे आर समटाइम्स कॉल्ड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। और ये वर्ड याद रखिएगा, कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, ये जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल होता है, इट लिंक्स द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये उनकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रानियस वेरिएबल्स एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। एक्सट्रानियस वेरिएबल जो है वो कहीं ना कहीं आउटसाइड ऑपरेट कर रहा होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंफ्लुएंस है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको इंफ्लुएंस कर रहा था, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल से होता है। जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो बिल्कुल बीच में होता है, उसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंफ्लुएंस चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंफ्लुएंस चेंज हो जाता है। एक्सट्रानियस वेरिएबल वो है जो अलग से डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, in certain situations the relationship between an independent and a dependent variable cannot be established without the intervention of another variables. So the cause or independent variable will have the assumed effect only in the presence of an intervening variable. So sometimes these intervening variables are called as mediator variable. In a theoretical variable, the researcher uses to explain a cause or connection between other study variables. So usually dependent और independent के बीच में एक variable होता है। Example लीजिए कि let's take an example कि if wealth is the independent variable and the long lifespan is a dependent variable. Wealth is an independent variable and the long lifespan is a dependent variable. The researcher might hypothesize that access to quality healthcare is the intervening variable that links wealth and lifespan. So wealth अपने आप में lifespan को predict कितना करेगी, ठीक है, डिपेंड इस वेल्थ और लाइफ स्पैन के बीच की रिलेशनशिप के बीच में आ जाएगा फैक्टर दैट इज एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। सो पैसा अपने आप इंफ्लुएंस नहीं कर रहा, संपत्ति अपने आप इंफ्लुएंस नहीं कर रही, अमीरी अपने आप इंफ्लुएंस नहीं कर रही। हो क्या रहा है कि ये अमीरी की वजह से, पैसे की वजह से एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर हो जा रहा है, और जितना अच्छा एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर होगा उतना अच्छा लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, सो जो हमारा एग्जांपल है, मान लो स्मोकिंग और कैंसर का, हम उसको देखें। So suppose that you want to study the relationship between smoking and cancer and you assume कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर का एक कारण है, और स्टडीज में भी ये देखा गया है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। हमने बात की कि बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से डाइटरी हैबिट्स हैं, अमाउंट ऑफ सिगरेट है, ड्यूरेशन कितने समय से पी रहा है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स में अफेक्ट the extent to which smoking might cause cancer. So ये जो variables होते हैं ये बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अगर आप suppose that जो आपको इमेज यहां दिखाई दे रही है, आप एक मिनट, अगर आप ये स्टडी करना चाहें कि फर्टिलिटी और मोर्टालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सो आपका जो एम हो सकता है दैट इज टू एक्सप्लोर कि व्हाट हैपेंस टू फर्टिलिटी व्हेन मोर्टालिटी डिक्लाइंस। तो जो हिस्ट्री है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, वो आप देखेंगे कि जब जब रिडक्शन इन फर्टिलिटी लेवल है तो इसका मतलब मोर्टालिटी में भी डिक्लाइन है। बट एज सच देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी. So with the reduction in mortality, fertility will decline only if people attempt to limit their family size.
attempt to limit their family size. And it is thus the intervention of contraceptive methods that complicates the relationship. तो मोर्टालिटी और फर्टिलिटी के बीच के रिलेशनशिप को आप बिना ये जो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है इसके बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इसके सिचुएशन में इंटर होते ही देयर इज अ चेंज. ठीक है ना, जैसे मान लो और द एक्सटेंट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज आल्सो अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स. तो ये हो जाएगा एक्सटर्नस वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल एटीट्यूड टुवर्ड्स contraception, level of education, socio-economic status, age, certain religions are there, and provision and quality of healthcare services. So ये जो factors हैं जो independent variable के influence को नहीं influence कर रहा है, बल्कि जो intervening variable है या जो directly dependent variable है जो उसको influence कर रहा है वो extraneous variables है. लेकिन intervening variable जो बिल्कुल बीच में आया हुआ है जो ये ensure कर रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंफ्लुएंस मैं डिसाइड करूंगा, है ना. इफ आई एम देयर इन बिटवीन, आई विल डिसाइड, इट विल गो थ्रू, मेरे से होकर जाएगा, इट विल गो थ्रू मी. दीज काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. सो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, एक्सटेंस वेरिएबल्स, ये तो हुआ कि अगर आप स्टडी में कॉज और इफेक्ट देखना चाहते हो. ठीक है ना, अगर आप स्टडी में कॉज और इफेक्ट देखना चाहते हैं. अब अगर आपका स्टडी का डिजाइन उस पर फोकस करें, स्टडी डिजाइन पर फोकस करें, तो उसके हिसाब से भी देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स. सो जैसे मान लो इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट और एक्स पोस्ट फैक्टर और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी. So in controlled experiment, the independent variable, that is cause, may be introduced or manipulated either by researcher or by someone else who is providing the service. And in these situations, there are basically two sets of variables. पहला variable की जो category है उसको हम कहते हैं active variables. So active variables क्या है? Those variables that can be manipulated, changed or controlled. ठीक है, तो जितने study interventions हो सकते हैं basically, जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट कंटेक्स्ट में खास करके, दोज आर कॉल्ड एज एक्टिव वेरिएबल्स. दूसरे तरह के वेरिएबल होते हैं जिनको रिसर्चर मैनिपुलेट, कंट्रोल या मेजर नहीं कर सकता, जिनको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, तो उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल्स. सो दोज वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, चेंज्ड और कंट्रोल्ड एंड दैट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन. जैसे एग्जांपल हम मेंशन किया हमने, एज है, जेंडर है, एजुकेशन है, इनकम है. सो सपोज अ स्टडी इज डिजाइन्ड टू मेजर द रिलेटिव if you plan a study to measure the relative effectiveness of 3 teaching models, model A, model B or model C. So the structure and contents of these models could vary and any model might be tested on any population group. So जो content होगा, structure होगा, testability of the model होगी on a particular population group, ये भी vary कर सकते हैं from researcher to researcher. और दूसरी तरफ, a researcher does not have any control over characteristics of the student population such as their age, gender or motivation of the study. तो ये जो इसका एक हिस्सा था जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते थे, है ना, कि कंटेंट क्या रखोगे आप, स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉडल की इफेक्टिविटी कैसे टेस्ट करोगे, ये वो वेरिएबल्स है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकता है या मेजर कर सकता है. तो इनको हम एक्टिव वेरिएबल्स बोलेंगे. लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एज मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उनके जेंडर को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा. दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बेसिकली पार्टिसिपेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जिनको वो चेंज नहीं कर सकता, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड एज एट्रीब्यूट वेरिएबल्स. सो जिस तरह से आप स्टडी करते हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ये आपको 2 टाइप के वेरिएबल्स दिखाई पड़ेंगे, एक्टिव वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स.
जो तीसरे तरह का क्लासिफिकेशन है दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप क्या ले रहे हो, यानी जो वेरिएबल आपका है, जो इंटरेस्ट आपका है, फिर जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो, उस पर आप लोगों के रिस्पॉन्स किस तरीके से ले रहे हो। लोगों के रिस्पॉन्स आप हानि में ले रहे हो, प्रेजेंस एब्सेंस में ले रहे हो, या उसमें कुछ मैग्नीट्यूड आपने इन्वॉल्व किया, नंबर इन्वॉल्व किया, 1 2 3 4 5 इन्वॉल्व किया है। सो ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से, अगेन विद इन दिस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसके हिसाब से जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के क्लासिफिकेशन में आएंगे। पहला वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, और दूसरा है कैटेगरिकल वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। सो ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, आर दोज दैट एक्सप्रेस अ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट, जिसको आप एक्चुअली नंबर में डाल ही नहीं सकते, है ना। सच है, मान लो हेयर कलर है, रिलीजन है, रेस है, जेंडर है, सोशल स्टेटस है, मेथड ऑफ पेमेंट है, एंड सो ऑन. So the values of a qualitative variable do not imply a meaningful numerical ordering. The value of the variable, suppose that example, religion. So Hindu, Muslim, Sikh, Isai, they differ qualitatively. No ordering of religion is implied. तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, इनको कई बार आप कैटेगरिकल वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कैटेगरी बनाओगे, हिंदूज वन कैटेगरी, मुस्लिम्स अनदर कैटेगरी, सिख्स अनदर कैटेगरी, ईसाई अनदर कैटेगरी, जैन अनदर कैटेगरी. सो इस एग्जांपल लीजिए कि अगेन ये जो वेरिएबल है सेक्स मान लो, इट हैज टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल, एंड सिंस द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन कैटेगरीज, वी रेफर टू दिस एज कैटेगरिकल वेरिएबल्स. सिमिलरली प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे अर्बन है, रूरल है, ठीक है. ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं, ये बेसिकली नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे मेजर किए जाते हैं. जब आप इसे मान लो रैंक कर सकते हो, जहां पे ए प्लस है, ए है, बी प्लस है, या क्लोथिंग का साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल हम यूज करते हैं ना, एल साइज चाहिए, एस चाहिए, एम चाहिए, एक्सएल चाहिए. सो ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं बेसिकली या तो कैटेगराइज किए जाएंगे, ठीक है, या फिर इनमें ऑर्डरिंग की जाएगी. सो नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पर आप जिन वेरिएबल्स को स्टडी करते हो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं. दूसरे तरह के वेरिएबल है वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, इनको न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं. सो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होता है. जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज अ पर्सनस एज, ठीक है. सो द एज कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज बिकॉज अ पर्सन कैन बी ऑफ 20 years old और 35 years old और सो ऑन. सो लाइकवाइज मान लो फैमिली साइज है, ये भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है बिकॉज अ फैमिली माइट बी कंप्राइज ऑफ 1 2 3 4 5 मेंबर्स एंड सो ऑन. सो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में नंबर्स होगा, और नंबर जो है वो कम या ज्यादा होते हैं. जब क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात हम कर रहे थे तो उस जगह पर सिर्फ डिफरेंस होगा, ए इज डिफरेंट देन बी, उसमें कम ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है. कौन किससे सुपीरियर है ये नहीं हो रहा. सो ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, सॉरी ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ये इनका ऑब्जर्वेशन ही हम नंबर्स में लेते हैं. क्वांटिटेटिव वेरिएबल को फर्दर आप दो काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स में क्लासिफाई कर सकते हो, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है, अ डिस्क्रीट वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन वैल्यूज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स सच एज फैमिली साइज, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ बॉक्स. दे आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ enumeration or counting. There is no in between or decimal values in discrete variable. So the easy way of remembering, discrete variable में decimal values नहीं होती है, बीच का नहीं हो सकता, या तो पिछला नंबर होगा या अगला नंबर होगा, इन बिटवीन वैल्यूज नहीं हो सकती. जैसे एग्जांपल्स लो आप, एक साल में मानो जितने एक्सीडेंट होते हैं, यू कैन से दैट कि in 1 year there were 200 accidents. You cannot say 200.73 accidents, ठीक है ना. Number of patients admitted to a hospital, you cannot say 32.3 patients were admitted, है
नंबर ऑफ, मान लो बैंक्स हैं, नई ब्रांचेस खोलते हैं, तो आप कह सकते हो 35 ब्रांचेस ओपन, 40 ब्रांचेस ओपन, 33.35 ब्रांचेस ओपन, नथिंग लाइक दैट. सो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं उनका नंबर होल होता है, पूरा होता है, इन बिटवीन डेसिमल वैल्यूज में नहीं होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स. जो दूसरे वेरिएबल हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के टाइप्स हैं, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल. Continuous variable. As the name appears, a continuous variable is one that may take on an infinite number of intermediate values along a specified interval. तो इसकी इंटरमीडिएट वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती है. ठीक है, जैसे मान लो ब्लड शुगर का क्या लेवल है, ब्लड प्रेशर क्या है, टेम्परेचर है ना. आप टेम्परेचर लेते हो ना, तो 90, जैसे फॉरेनहाइट में जब आप टेम्परेचर जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, देन यू टेक टेम्परेचर, तो फॉरेनहाइट में 98.1, 98.2, 98.3, 98.4. देयर आर डिजिटल थर्मामीटर जो इससे भी आगे दे देते हैं कई बार, 98.35, समथिंग लाइक दैट, है ना. रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट आप देखो, 6.35%, 7.21%, है ना. सो these are the variables. ये वो quantitative variables हैं, continuous variable, वो quantitative variables हैं जिनकी इंटरमीडिएट वैल्यू हो सकती है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है, जो जंप नहीं करते हैं एक के बाद अगले नंबर पे. जो एक के बाद अगले नंबर पे जंप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल. जो लगातार चलते हैं, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, then so on, 0.39, 0.40, जो लगातार चलते हैं, that is called as continuous variable. So qualitative variable ऊपर हो गया, जो categorical variable है बेसिकली, और जो quantitative variables है उनमें दो टाइप है, that is discrete और continuous variables. जो दूसरे तरह क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से categorical variables similar to qualitative variables and continuous variable similar to quantitative variables होते हैं. Categorical variables जो है बेसिकली categorical variables बेसिकली कैटेगरी. इसके भी तीन टाइप्स हैं. पहला है कांस्टेंट वेरिएबल, दूसरा है डाइकोटोमस या बाइनरी वेरिएबल, और तीसरा है पॉलीटोमस वेरिएबल. तो कांस्टेंट वेरिएबल हैज ओनली वन कैटेगरी और वैल्यू, फॉर एग्जांपल ट्री या वाटर या टैक्सी, इनकी एक ही कैटेगरी है ना. जो दूसरे टाइप के वेरिएबल्स हैं कैटेगरी के वेरिएबल, उनको डाइकोटोमस या बाइनरी वेरिएबल कहते हैं. दोज हैज ओनली टू कैटेगरीज. लाइक अब तो आप नहीं कहते हो, लेकिन अदरवाइज देयर वाज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जेंडर, ठीक है ना, जिसमें मेल फीमेल होती है, लेकिन अब थर्ड जेंडर भी है. यस, नो, गुड और बैड, हेड और टेल. जब आप क्वाइन को करते हो तो उसमें केवल दो ही कैटेगरी है. क्वाइन में तीसरा कुछ होता है हेड और टेल के अलावा? आई डोंट थिंक सो, है ना. अप डाउन, उसमें इन बिटवीन की कोई कैटेगरी नहीं है. सो दोज वेरिएबल्स व्हिच हैव ओनली टू कैटेगरीज आर कॉल्ड एज बाइनरी वेरिएबल या डाइकोटोमस वेरिएबल. तो भले ये कैटेगरी वाले हैं, यानी वन इज डिफरेंट देन अनदर, बट सम काइंड्स ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल जिसकी एक ही कैटेगरी है, सम काइंड्स ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल जिसकी दो कैटेगरी हो सकती है, जिसको हम डाइकोटोमस या बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं. Some kind of categorical variables which can be divided into more than two categories. जैसे मान लो रिलीजन है, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, है ना, सिख्स, जैन, या पॉलिटिकल पार्टीज है, मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, एक्सवाइजेड बहुत पार्टीज है. आज जब एटीट्यूड्स का मेजरमेंट करते हो ना हम लोग, जब स्केल्स यूज करते हैं, तो ये जो स्केल जब हम यूज करते हैं, तो स्केल बेसिकली पॉलीटोमस वेरिएबल है, क्योंकि 3 पॉइंट या 5 पॉइंट स्केल यूज करते हो. जब आप केवल यस नो यूज करते हो तो उस समय बाइनरी वेरिएबल से किसी क्वेश्चन का आंसर आपने पूछा केवल यस और नो, तो बाइनरी वेरिएबल में है. जैसे आप स्केल यूज करते हो तो स्केल 3 पॉइंट स्केल है, 5 पॉइंट स्केल है, 7 पॉइंट स्केल है, 9 पॉइंट स्केल है, 11 पॉइंट स्केल तक यूज करते हैं. सो पॉलीटोमस वेरिएबल है बेसिकली उस कंटेक्स्ट में. आपका जो वेरिएबल बना वो पॉलीटोमस वेरिएबल बना. तो ये तो गया कैटेगरिकल वेरिएबल. दूसरी तरफ कंटिन्यूअस वेरिएबल वो है जिनका स्कोर लगातार चलता है, एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू द जो हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल में कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात की. ठीक है,
तो अगर आप इन सब को एक एग्जाम्पल से देखें तो आप यहां देख सकते हैं दैट कैटेगरिकल, कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो जो कांस्टेंट है उनके एग्जांपल्स हो गए, जैसे वाटर है, ट्री है, टैक्सी है। जो डाइकोटोमस है उसमें आप यस, नो, गुड, बैड, रिच, पुअर, डे, नाइट, मेल, फीमेल, हॉट और कोल्ड। जो पॉलीटॉमस है जिनकी कई सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे एटीट्यूड स्केल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एज है, इनकम है, तो इनको आप कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है जो डेसिमल्स में भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, सम एग्जांपल्स आर देयर, इनकम, एज और वेट। देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स व्हिच आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जिनमें नंबर नहीं होता। आप कैटेगराइज करने के लिए कोडिंग में, एसपीएस या किसी में कोडिंग में यूज कर सकते हो। सपोज दैट यू गिव अ कोड 1 to मेल और 2 to फीमेल। क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है 1 से, इट डजंट मीन कि यहां पर जो 2 जिसको आपने दिया है फीमेल इज बेटर देन मेल, और अगर आप मेल को 2 दे दो तो इट्स बेटर देन फीमेल, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट टू टू ना डिफरेंशिएट देम। ठीक है, एजुकेशन लेवल है या एज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। कई सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जो नंबर्स में ही आते हैं, जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड है, या एज है, इनकम है, टेम्परेचर है। सो दीज वेरिएबल्स you measure them in numbers. So categorical variable इस तरह की एग्जांपल है। The way research is being done nowadays, जब आप आज देखते हो तो statistical rigor बहुत ज्यादा यूज होता है। Even in psychology is considered as one of the very important branch of social science, behavioral science, जो बहुत ज्यादा statistical rigor यूज करती है। इकोनॉमिक्स के बाद I personally feel psychology is the subject which uses statistics more than other social science papers. So nowadays you will listen about some other variables also. कुछ और नाम भी आप सुनेंगे, जैसे moderating variables और composite variable। demographic variable तो हम बहुत classical है, जानते हैं, but I will just discuss. So moderating variable or moderator variable, it basically changes the relationship between dependent and independent variables by strengthening or weakening the intervening variables effect. तो मान लो एग्जांपल लो कि in a study looking at the relationship between economic status, जो कि आपका independent variable है, and how frequently people get physical exams from a doctor, जिसको आप कहो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपकी ये जो स्टडी है इसमें क्या होगा, एज इज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज दैट रिलेशनशिप माइट बी वीकर इन यंगर इंडिविजुअल्स एंड स्ट्रॉन्गर इन ओल्डर इंडिविजुअल्स। तो भले ही आप ये स्टडी कर रहे हो कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका लोगों के इस बिहेवियर पर, कि वो जाकर डॉक्टर्स से मिलते हैं, इस पर कितना इंफ्लुएंस है, इसकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे देयर इज अ वेरिएबल व्हिच इज कमिंग इन बिटवीन, दैट इज एज। तो यंगस्टर्स आर सपोज्ड टू हैव गुड हेल्थ, so they may not be visiting doctors frequently, so that this age is coming in between and influencing the influence of independent variable on dependent variable. दूसरी तरह के वेरिएबल्स जो यूज किए जाते हैं इन कॉम्प्लेक्स स्टडीज, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट वेरिएबल्स भी कहते हैं। कंपोजिट वेरिएबल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट वेरिएबल। जैसे मान लो ओवरऑल हेल्थ इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट वेरिएबल। इफ यू यूज अदर वेरिएबल्स, है ना, सच एज वेट, ब्लड प्रेशर और क्रोनिक पेन टू डिटरमिन ओवरऑल हेल्थ इन योर एक्सपेरिमेंट। सो जो आप कहते हैं ना सुपरसीडिंग वेरिएबल है, वो सुपरसेटिंग वेरिएबल के लिए आप 4-5 वेरिएबल्स हैं और उन सबको मिलाकर यू गिव अ नेम दैट ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 अदर वेरिएबल्स जो मिल करके एक बड़ा वेरिएबल बना रहे हैं। उस सुपर ऑर्डिनेट वेरिएबल को आप कंपोजिट वेरिएबल कहते हैं। थर्ड इज डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। सो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्जेक्ट्स that are collected to describe the sample. आपका जो सैंपल है, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं,
उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए केवल इसको सिंपल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं. It means these variables describe study sample and determine if sample are representative of the population of interest. So although demographic variables cannot be manipulated, researchers can explain relationship between demographic variables and dependent variables. So जो बहुत common demographic variables है, जैसे age है, gender है, occupation है, marital status है, income है, they are basically डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. और हम इसको कई बार क्लासिफिकेशन के लिए या स्ट्रेटा, जितना हमारा पॉपुलेशन का स्ट्रेटा है उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, उसको देखने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को यूज करते हैं. ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स. जब आप रिसर्च करोगे तो यू विल लिसन अबाउट दीज वेरिएबल्स. सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द नेचर, द कैरेक्टर of these variables and in what context which name is being used. So जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ हमारे वांटेड वेरिएबल्स होते हैं, उनकी स्टडी हम कर रहे होते हैं, बट कुछ अनवांटेड इन्फ्लुएंस भी होता है. और ये जो अनवांटेड इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज मैटर ऑफ कंसर्न. ओके. सो once you are trying to identify these unwanted variable, then I was saying the initial part that confounding variable जो है उसको आप याद रखिए. सो कंफाउंडिंग वेरिएबल, कई बार इसको कंफाउंडर्स भी कहते हैं या कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी कहते हैं. सो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर अ टाइप ऑफ एक्सट्रेनुअस वेरिएबल दैट आर रिलेटेड टू अ स्टडीज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. तो अब आप किसी वेरिएबल को कंफाउंडिंग वेरिएबल कब कहोगे? तो देयर आर टू कंडीशंस टू बी कॉल्ड एज एनी वेरिएबल एज कंफाउंडर. पहला है, इट मस्ट बी कोरिलेटेड विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. अब ये जो रिलेशनशिप है ये कॉजल हो सकती है, कॉजल नहीं हो सकती है, सिर्फ रिलेशनल स्टडी हो सकती है, सिर्फ कोरिलेशनल रिलेशनशिप हो सकती है, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और दूसरा है, इट मस्ट बी कॉजली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी इसका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस चीज की, जिस घटना की, जिस फेनोमेनन की आप स्टडी कर रहे हो, उस पर इसका इंफ्लुएंस होना ही चाहिए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कुछ दोनों के बीच संबंध होना चाहिए. लेकिन इस वेरिएबल का, किसी भी वेरिएबल को आप कंफाउंडिंग तभी कहोगे जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो रिलेटेड हो, लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल को जरूर इंफ्लुएंस करता हो, तब आप उसे कहेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल. तो कंफाउंडिंग वेरिएबल इज वन you did not account for but can influence the entire relationship. So confounding variable can invalidate your experiment results or research results by making them biased or suggesting a relationship between variables which actually does not exist. तो आप एक एग्जांपल लीजिए. Suppose that if you are studying the relationship between exercise level, ठीक है ना, and body mass index, तो क्या होगा इसमें? आपका आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा एक्सरसाइज लेवल. Sir, you are not audible to us. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया सर. तो
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Connection in between. मेरी आवाज ना आ रही। आने लगी सर अब। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir, आ रही है. यस सर, आ आ रही रही है? है। यस सर। ठीक है सर, आ रही है। स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? No, sir. नो सर। There is some network issue. I'm just trying to solve it. Is my PPT visible? नो सर। No, sir. यस यस सर, दिखने लगा। यस सर। दिस शोस। It is showing of variables. So ये जो confounding variable है, कंफाउंडिंग वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की को इन्फ्लुएंस करता है। हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप एक एग्जांपल सपोज दैट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज लेवल एंड बॉडी मास इंडेक्स। तो जो एक्सरसाइज लेवल है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बॉडी मास इंडेक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बट इफ आई एम नॉट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ एज in this relationship, it won't be conclusive research, because age becomes a confounding variable that changes your results. So why confounding variable matters? So to ensure the internal validity of your research, you must account for confounding variables. If you fail to do so, your result may not reflect the actual relationship between the variables that you are interested in. तो अगर आप एक्सरसाइज का इन्फ्लुएंस बॉडी मास इंडेक्स पे देखना चाहते हो तो एज एक फैक्टर होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा। So the body mass index of a young person will differ from body mass index of old age person. So ये जो एज का इन्फ्लुएंस है, because age will influence body mass index, age influences body mass index, तो क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल से है, ये इन्फ्लुएंस करेगा और ये एक्सरसाइज लेवल एज से भी संबंधित है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है और डेफिनेटली बॉडी मास इंडेक्स के रूप में डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए ये कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा। तो अगर इसका इन्फ्लुएंस न समझा जाए, इसका इन्फ्लुएंस न देखा जाए, इसका इन्फ्लुएंस काउंट न किया जाए, तो जो एक्चुअल रिलेशनशिप है उसकी स्टडी नहीं हो पाएगी, उसका कंक्लूजन नहीं हो पाएगा, रिजल्ट्स जो होंगे उनकी वैलिडिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना? सो होगा क्या? यू मे फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टडी की उसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल था, जो आउटकम मिला वो कहीं ना कहीं कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से था। क्योंकि हम कंफाउंडिंग वेरिएबल को आइडेंटिफाई और कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो हम रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं? एट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। लेकिन हो सकता है कि ये जो मिल रहा है हमें, जो आउटकम हमें मिल रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ना होकर कुछ और वेरिएबल्स की वजह से। मान एक और एग्जांपल लेते हैं। You find that babies born to mothers who smoked during their pregnancies weight significantly less than those born to non-smoking mothers. बहुत आई थिंक बहुत वाइडर रीच वाली स्टडी है, बहुत बार बात होती है इस तरह की स्टडीज की। लेकिन अगर आप इसके कंटेक्स्ट में आप इस बात को अकाउंट नहीं करते हैं दैट ये जो स्मोकिंग मदर्स हैं, ये स्मोकिंग मदर्स हो सकता है कि दूसरे तरह के अनहेल्दी बिहेवियर्स में भी इंगेज हो, सच एज ड्रिंकिंग और ईटिंग लेस हेल्दी फूड्स, then you might overestimate the relationship between smoking and low birth weight.
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस लो बर्थ वेट, ये जो आउटकम है ये और वेरिएबल से भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ एक वेरिएबल को लेकर के स्टडी कर रहे हो, मान लो स्मोकिंग बिहेवियर, और आप दूसरे पोटेंशियल वेरिएबल्स को जो लो बर्थ वेट को 100% इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, 99% इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको आप काउंट ही नहीं करते, देन यू मे कंक्लूड कि हाँ ऐसा होता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके सैंपल में रीजन कुछ और रहा हो जिसको आपने काउंट ही नहीं किया। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना और उसके इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करना इज वेरी मच नेसेसरी टू इंश्योर द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च। आपके जो कंक्लूजन आए हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी बढ़ाने के लिए इट इज रिक्वायर्ड that you should identify and control the impact of confounding variables. Now, how to control the impact of confounding variables? So there are certain methods जिसकी help से आप confounding variables का जो influence है उसको आप control कर सकते हो। Now again there are certain methods and you need to identify that for my research, मेरी research के लिए मुझे कौन सी वाली method या methods use करनी है। ऐसा नहीं कि कोई एक मेथड बेस्ट है और वही हर जगह यूज होगी, हर मेथड के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सो पहली और दूसरी जो है बहुत सिंपल मेथड्स है। फर्स्ट इज एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन में क्या होता है, ये मोस्ट डिजायरेबल वे टू कंट्रोल है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। इसमें क्या करते हो आप, सिंपली इलिमिनेट कर देते हो उन वेरिएबल्स को। हर रिसर्च वर्क में ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंट और स्ट्रिक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में यू कैन अप्लाई दिस थिंग। जैसे मान लो सर्टेन लेबोरेटरीज आर देयर जो साउंड प्रूफ होती हैं, बहुत ओपेक होती हैं, तो आप एक्सट्रेनुअस जो आपकी नॉइज है, जो लाइट का इन्फ्लुएंस है, आप उसको इलिमिनेट कर सकते हो आप कर्टन्स यूज करके, या तो इट इज पॉसिबल। इलिमिनेशन तब पॉसिबल है जब आप स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। दूसरी मेथड है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड माइट बी हेल्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो होता क्या है, द सेम वैल्यू ऑफ सच अ वेरिएबल इज प्रेजेंटेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट। तो मान लो लाइट का जो इन्फ्लुएंस है, या आपके डिफरेंट बैचेस हैं, कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो उनको आप एक ही सेटअप में रखो। मान लो एक ही कमरे में एक्सपेरिमेंट कराया, उनको एक ही टाइम में एक्सपेरिमेंट कराया, तो जो इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेक्स्ट है ना, उसको आपने कांस्टेंट कर दिया। तो जो भी कमरे का लुक होगा, उसका जो ऑर्डर या स्मेल होगा, जो कलर होगा, या जो फर्नीचर है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां अवेलेबल है, उसका जो इन्फ्लुएंस हो सकता है, दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सिंपल आप जो होमोजेनस बनाओ, तो ऑर्गेनिक वेरिएबल्स को भी आप कांस्टेंट कर सकते हो, जैसे एज है, सेक्स है, एजुकेशनल लेवल है, तो आप उसको भी कांस्टेंट कर सकते हो। सो सेकंड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इंपैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग वेरिएबल इज कांस्टेंसी ऑफ कंडीशन। थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। सो बैलेंसिंग तब की आती है व्हेन इट इज नॉट फिजिबल टू होल्ड कंडीशंस कांस्टेंट। तो क्या करता है, द एक्सपेरिमेंटर बैलेंस करता है द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और कंपाउंडिंग वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो आपके बैचेस बने हुए हैं, उन बैचेस को, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बैलेंस किया जाता है। सो यू कैन सी एग्जांपल कि आप इसमें जेंडर को आप बैलेंस कर रहे हो। जो अगली मेथड है दैट इज कॉल्ड एज काउंटर बैलेंसिंग। तो काउंटर बैलेंसिंग में होता है दैट इन सम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द level of independent variable. So to make it sure that it is only the influence of level of independent variable, आप participants के सब ग्रुप बनाते हैं, एंड ये जो सब ग्रुप्स हैं, उन सभी सब ग्रुप्स को रिपीटेड ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में डालते हैं। सो जो ईच कंडीशन है, जितने भी बनती है आपकी,
वो ईच कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ईच पार्टिसिपेंट an equal number of times and each condition must occur an equal number of times at each practice session. तो मान लो हमने ये जो कलर का इन्फ्लुएंस है हमारा कि ट्रैफिक लाइट्स है उनका इन्फ्लुएंस है, तो आप क्या करोगे कि पार्टिसिपेंट्स के बैच बांटोगे और उनके जितने सेशंस या जितने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होने हैं सबको इक्वल नंबर में और हर पार्टिसिपेंट को हर तरह की कंडीशन का एक्सपोजर जब मिलता है देन इट इज कॉल्ड एज काउंटर बैलेंसिंग. सो डिफरेंस क्या है बैलेंसिंग और काउंटर बैलेंसिंग में? बैलेंसिंग में बेसिकली पार्टिसिपेंट फोकस होता है और काउंटर बैलेंसिंग में जितनी कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस फोकस होती है. सो काउंटर बैलेंसिंग. थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन. तो रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है? यू रिस्ट्रिक्ट योर ट्रीटमेंट ग्रुप बाय ओनली इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स विद द सेम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल कंफाउंडिंग फैक्टर्स. ठीक है, तो क्योंकि ये वैल्यूज डिफर नहीं करती हैं सब्जेक्ट्स में, तो वो कोरिलेट नहीं करती हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और इसलिए कंफाउंड या कॉज एंड इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है आपकी उसको भी इन्फ्लुएंस नहीं करती है. इस मान लो एग्जांपल लिया कि यू वांट टू स्टडी कि ये जो लो कार्ब डाइट होती है, लो कार्ब डाइट जब वेट रिड्यूस करने के लिए लोग यूज करते हैं, सो वेदर दिस लो कार्ब डाइट कैन कॉज वेट लॉस. तो आपको पता है कि एज, सेक्स, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सरसाइज, ये जो है ये वो फैक्टर्स हैं जो वेट लॉस एसोसिएटेड है और आपकी डाइट से भी जुड़े हुए हैं. तो आप क्या करते हो? यू चूज टू रिस्ट्रिक्ट योर सब्जेक्ट पूल टू 45 years old women with bachelor's degree who exercise at moderate level of intensity between 100 to 150 minutes per week. तो इसमें क्या किया आपने? जो आपका सैंपल है, जिस पार्टिसिपेंट है जिन पे आप स्टडी कर रहे हो, तो आप सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल को आइडेंटिफाई करके उनका लेवल फिक्स कर देते हो और उसी फिक्स लेवल को बेयर करने वाले लोग आपके पार्टिसिपेंट बनते हैं. तो यू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ पर्सन इनटू योर सैंपल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन. तो इसके कुछ फायदे हैं, नुकसान है. इट इज इजी टू इंप्लीमेंट, लेकिन होता क्या है, नुकसान क्या है कि इससे आपका सैंपल साइज जो है ना वो बहुत यूनिक और स्पेसिफिक हो जाता है. तो और कई बार ऐसा भी होता है दैट यू माइट फेल टू कंसीडर अदर पोटेंशियल कंफाउंडर्स, क्योंकि आप 1, 2, 3, 4, 5 कितनी कंडीशंस रिस्ट्रिक्ट करोगे. सो इट बिकम्स अ लिमिटेड अप्रोच टू अप्लाई. नेक्स्ट जो मेथड है उसको कहते हैं मैचिंग. तो मैचिंग में you select a comparison group that matches with the treatment group. तो होता क्या है? Each member of the comparison group should have a counterpart in the treatment group. तो जैसा पार्टिसिपेंट कंट्रोल ग्रुप में वैसा ही पार्टिसिपेंट ट्रीटमेंट ग्रुप में भी है विद द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कंफाउंडर्स. ठीक है, अब क्या होता है? ये जो आपके दो ग्रुप्स हैं ये मैचिंग ग्रुप्स हैं. So this allows you to eliminate the possibility that differences in confounding variables cause the variation in outcome. जिस टाइप के confounding variables और जितना उनका लेबल आपके कंट्रोल ग्रुप में है, वैसे ही confounding variable उतना ही उनका लेबल आपके ट्रीटमेंट ग्रुप में भी है. तो अब का जो कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप डिफर किस बेसिस पे कर रहा है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कितना लेवल ऑफ वेरिंग कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर रहे हो. तो क्योंकि सैंपल में आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सेम रखी है, मैचिंग पार्टिसिपेंट्स रखे हैं, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो सब में सेम है, और इस वजह से जो आपको आउटकम मिलेगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, that will be exclusively because of your independent variable, और जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया होगा उसकी वजह से मिलेगा. इसके भी अपने फायदे और नुकसान है. इट अलाउज यू टू इंक्लूड मोर सब्जेक्ट देन रिस्ट्रिक्शन. तो रिस्ट्रिक्शन में तो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट साइज रहता है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. इट कैन प्रूव डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट सिंस यू नीड पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट that match on every potential confounding variable. तो इतने मिलते जुलते पार्टिसिपेंट्स लाना कई बार बहुत टफ हो जाता है. एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि जो दूसरे वेरिएबल्स हैं जो मैच नहीं करते हैं वो भी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो ये इसका नुकसान है. जो तीसरी मेथड है
दैट इज कॉल्ड एज रेंडमाइजेशन. रेंडमाइजेशन में क्या होता है? सो दिस इज अनदर वे टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, if some of your participants are assigned to a treatment group while others are in a control group, you can randomly assign participants to each group. Randomization, we know it's a typical method, but it ensures that with a sufficiently large sample, बहुत जरूरी होता है randomization के लिए, all potential confounding variables, even those you cannot directly observe into your study, will have the same average values between different groups. बड़ा सैंपल लोगे तो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो हमारे assumptions हैं वो उस बड़े सैंपल पे डालते हैं. तो since these variables do not differ by group assignment, they cannot correlate with your independent variable and thus cannot confound your study. तो ये जो मेथड है रेंडमाइजेशन है, ये आपको एक तरह की फ्रीडम देती है, एक तरह से अलाउ करती है कि आप जितने भी आपके पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जिसको आप अदरवाइज कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, वो अगर आप रेंडमाइजेशन के थ्रू करो तो काफी हद तक कंट्रोल हो जा सकते हैं. जैसे मान लो एग्जांपल हो कि यू गैदर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी ऑन वेट लॉस. तो you randomly select half of them to follow a low carb diet and the another half to continue with their normal eating habits. So this randomization basically guarantees that both your treatment, या तो आपकी जो low carb diet है as well as your control group जिसका आपने डाइट चेंज नहीं किया है, will have not only the same average age, education, exercise level, but also the same average values on other characteristics that you haven't measured as all. क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सैंपल ले लिया है, बहुत बड़ा सैंपल लिया है, तो उस सैंपल में हर तरीके के वेरिएबल का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है और आपने रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल ग्रुप में या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला है. तो ये जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट है, इट इंश्योर्स दैट कि जो पूरे लार्ज ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक है उसका more or less equal representation in both the groups will be there. In a way, वो characteristics जिनकी आप स्टडी करना चाहते हो वो भी लगभग equally represent होंगी और जो confounding variables है, कुछ का जिनका आपको पता है, कुछ का जिनका आपको पता नहीं है, वो भी equally दोनों ग्रुप में distribute हुए होंगे. That is the very very important benefit of randomization. So ये जो randomization है ये आपको अलाउ करता है कि जितने सारे confounding variables हैं जो आपको पता नहीं भी हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए दोनों के ग्रुप्स में. एंड इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. इसीलिए रैंडम सैंपलिंग जब हम बात करते हैं तो रैंडम सैंपलिंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट सैंपलिंग मेथड. प्रॉब्लम क्या है? इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कैरी आउट. You need to know the sample and population well, and there should be a large population. It must be implemented prior to beginning the data collection. है ना, पहले ही करना पड़ेगा आपको पार्टिसिपेंट्स के लेवल पे ही. एंड यू मस्ट इंश्योर दैट ओनली दोज इन द ट्रीटमेंट नॉट इन कंट्रोल ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट. और जो चौथी मेथड है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल. स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो है, इफ यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा एंड यू अब जो है आप चाहते हो कि जो आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं है ना उनको कंट्रोल करो. So you can include the possible confounders as control variables in your regression models, or in this way you will control for the impact of confounding variables. So जैसे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हो या लीनियर रिग्रेशन करते हो, कई बार हम हायरार्किकल रिग्रेशन में भी कंट्रोल वेरिएबल्स डालते हैं, तो ये सेपरेट कर देते हैं कि जो भी आपके वैसे वेरिएबल्स हैं जिनका आप इन्फ्लुएंस नहीं देखना चाहते हो, आप प्योर रिलेशनशिप देखना चाहते हो, तो आप रिग्रेशन के मॉडल्स में लॉजिस्टिक लीनियर या हायरार्किकल में आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनके इफेक्ट को हटा सको. एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस जिसको आप एनकोवा कहते हैं ना, ये भी बेसिकली इसमें भी ऐसा किया जा सकता है. सो एनकोवा भी पॉसिबल है क्योंकि एनकोवा जो है वो कॉम्बिनेशन है एनोवा और लीनियर रिग्रेशन का. सो एनोवा टेस्ट वेदर सर्टेन फैक्टर्स हैव एन इफेक्ट ऑन द आउटकम वेरिएबल्स आफ्टर रिमूविंग द वेरिएंस फॉर व्हिच क्वांटिटेटिव कोवेरिएंट्स जो कंफाउंडर्स हैं उनको अकाउंट करके हटा देते हैं. So the inclusion of this analysis can increase the statistical power and can give you more pure results
when your intention is to identify the exclusive influence of independent variable on dependent variable. तो इसका फायदा ये है कि एक तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की जो हम बात करते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि इट कैन परफॉर्म्ड आफ्टर डेटा कलेक्शन। जो इसकी कमी है वो ये है दैट यू कैन ओनली कंट्रोल फॉर वेरिएबल्स दैट यू ऑब्जर्व डायरेक्टली, जिनका स्कोर है आपके पास, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो वही डाटा तो आप इंटर करोगे स्टैटिस्टिकल मॉडल में। बट फॉर अदर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स यू हैव नॉट अकाउंटेड फॉर माइट रिमेन, तो जिसका आपके पास डेटा नहीं है, जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो स्टिल प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में आप इंटर उसी चीज को करो जिसका आपने डेटा या इंफॉर्मेशन ली होगी, और अब आप चाहते हो कि उसका इन्फ्लुएंस न देखूं, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस देखूं, तो इसको आप स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में कंट्रोल वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो this is all about controlling variables, and in earlier part I have tried to explain that what are the possible different kinds of variables. So if you have any questions, feel free to ask. I hope that yes, Divakar Patel raised hand. Divakar, you wanted to ask something? Divakar and Swapnil Sinha, please या तो आप अपना सवाल टाइप कर सकते हो या अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my question is, we are talking about statistical control. So in some models, ANCOVA regression, we have seen some experiments or research like saying taking intelligence as covariate. So when we take a variable as a covariate, is it the process? Does it come under the process of statistical control, or when do we take a variable as a covariate in our research? Your voice is not clear to me. Can you do something with it? What I understood is where to take covariates, I think. Yes, sir. Okay. So So does it come under as a process? as a process of what? As a process of controlling the Yes, confounding. when you are excluding the influence of covariates, then definitely you are controlling the influence of other variables which you don't want. Am I clear? Actually, in some studies, I have seen that intelligence has been taken as a covariate. My question is, when do we take a variable as a covariate in our research? No, when it is your interest, but not the prime interest. Okay, sir. Okay. Any other thing anybody wish to ask? हेलो सर। Yeah. सर आपने काफ़ी अच्छे से सारे वेरिएबल्स के डिफरेंसेस समझाए हैं एंड मेनी ऑफ द कंफ्यूजन्स हैव बीन क्लियर्ड। तो एक कंफ्यूजन अभी भी है कि मीडिएटर और मॉडरेटर के बीच में कैसा डिफरेंस आ रहा है। मतलब आपने कहा कि मॉडरेटिंग वेरिएबल, जैसा कि एग्जांपल भी आपने दिया था कि एज कैन बी द मॉडरेटिंग मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जी। मीडिएटर वेरिएबल वो होता है जिसकी प्रेजेंस से और जिसके एब्सेंस से, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी चेंजेस। ओके सर। ठीक है। मॉडरेटर वेरिएबल वो होता है जिसके मात्रा में चेंज आने से आईवी और डीवी का चेंज आ जाता है रिलेशनशिप। सो मीडिएटर इज वन which mediates, as the word appear, please take it very seriously. Mediator is one which mediates the relationship between IV and DV. So it may change the entire equation. Moderator is something which moderates, quantitatively or qualitatively influences the relationship between IV and DV.
Okay, sir. Okay. So one more thing. Hmm. Earlier, you said that intervening variable can also be called, sometimes also called as a confounding variable. Mm-hmm. And then at the last, you were saying that confounding variable is a type of extraneous variables that we all have Mm-hmm. studied. Mm-hmm. There's a extraneous variable और intervening variables में difference भी होता है. बिल्कुल होता है. तो सर दोनों को confounding variable कैसे मतलब कंफाउंडिंग कहने की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिंपल है और क्लियर है दैट जी. you don't want the influence of that particular variable, but that variable is potential enough. It may belong to any of the category from extraneous or intervening, but for your research work you want a pure relationship and you have identified that this variable is potential enough. ये मेरे डीवी को इन्फ्लुएंस करेगा ही, मैं मानूं या ना मानूं, ये मेरे डीवी को इन्फ्लुएंस करता है, थियोरेटिकल जी. बेस है, ठीक है, और ये आईवी से भी रिलेटेड है. लेकिन मेरा कंसर्न ये है दैट आई वांट अ प्योर रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, सो दैट आई वांट टू रिमूव, आई वांट टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वेरिएबल. दैट वेरिएबल इज कंफाउंडिंग वेरिएबल. इट मे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. I have one more question. Yes. Controlling methods of confounding variables, how will we differentiate between balancing and matching? Swapnil, I think there is some issue. मुझे कुछ भी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है. Okay, sir. Am I audible now? हाँ, little more clear, please. Sir, I was asking in the controlling method of confounding variables, how will we differentiate between matching and balancing? Your voice is still not clear, but what I understood is you wanted to know the difference between matching and balancing. Yes, sir. Okay, so balancing is something which is exclusively used in experimental methods. Matching you can do in correlational studies as well. More or less, they have large amount of similarity. Okay, sir. Okay? Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please give an example for moderating variables once more? It is a little difficult to understand, sir. Example of moderating variable. Yes, sir. Okay. So suppose that you want to understand the influence of certain physical exercises. Suppose that कि आपको देखना हो कि इन एक्सरसाइजेस का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है वेट लॉस पे, या जो आप बॉडी मास इंडेक्स की चर्चा कर रहे थे, उस बॉडी मास इंडेक्स पे, इस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है मॉडरेटिंग वेरिएबल. तो जो कॉन्सेप्ट है मॉडरेटिंग वेरिएबल का वो क्लियर कहता है कि मॉडरेटिंग वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को क्या करेगा, या तो स्ट्रेंथन कर देगा या वीक कर देगा. मॉडरेट करता है, ठीक है. Yes, sir. Okay. मॉडरेट करता है तो स्ट्रेंथन कर देगा या वीक कर देगा. तो एक्सरसाइज और इसके बीच में आप हर वो कंडीशन जिसकी वजह से बॉडी मास इंडेक्स बढ़ सकता है या घट सकता है, जी. वो हर वो चीज आपके लिए मॉडरेटिंग वेरिएबल होगी. अगर आपको कंफ्यूजन ये है कि मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग का फर्क क्या है, तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि मॉडरेटिंग जो है वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. मॉडरेटिंग क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है. जो मीडिएटिंग है वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप. अगर आप मीडिएटिंग को हटाओगे ना तो कई बार रिलेशनशिप गायब हो जाती है. Okay, है ही sir. नहीं, बचती नहीं. तो आपने मीडिएटिंग वेरिएबल जैसे रिमूव करा, रिलेशनशिप बची नहीं. वो इसलिए थी क्योंकि बीच में मीडिएटिंग वेरिएबल था. मॉडरेटिंग वेरिएबल की डिफरेंट कंडीशन में अमाउंट जो है स्ट्रेंथन या वीक हो सकती है.
नेचर ऑफ रिलेशनशिप में चेंज आएगा। तो मॉडरेटिंग नहीं है, वो मीडिएटिंग है। Okay, sir. Thank you, sir. एनी क्वेश्चंस और कुछ कोई पूछना चाहता है या फिर काफी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी? स्टूडेंट्स Yes, कोई और ma'am. पूछना चाहता है? ओके Yes, ma'am. किसी और के क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। ओके सर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और साथ ही स्टूडेंट की इंटरेक्शन से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लिया। और अक्सर मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग या और भी वेरिएबल्स को बिल्कुल लेकर बिल्कुल। के बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, क्योंकि ये तो अभी And प्राइमरी स्टेज पर एंट्रेंस that's why I क्वालिफाई wanted to करके सब। discuss these terminologies जी as well, क्योंकि सिंपली आईवी, डीवी और एक्सटर्नस वेरिएबल तो पीजी लेवल पे बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार देखा है, लेकिन अभी का जो हाँ रिसर्च हाँ वर्क है इसमें इन टर्मिनोलॉजीज से ज्यादा मतलब आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और एक बार फंडामेंटली कंसेप्चुअली इनको अगर समझ में आ गया तो फिर बिल्कुल जब ये अपनी सिनॉप्सिस डिजाइन करते हैं या कोई रिसर्च बिल्कुल। प्लान करते हैं तो उस समय इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो बिल्कुल समझ पाए, बता पाए कि कैसे क्या करना है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि बहुत ही अच्छा यूजफुल लेक्चर रहा आपका। और ऐसा ही हम चाहेंगे कि अभी तो इनका प्रोग्राम चलेगा मार्च तक, तो इन एनी जी केस स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे या और भी कुछ चीज़ें हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में चाहिए होंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक लेक्चर और आप इनको दें, बिकॉज इस तरह का क्योंकि आपका बहुत वाइड फील्ड है, बहुत प्रैक्टिकली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा। ज़्यादातर जो लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ठीक रहता है, अच्छा रहता है कि वो बहुत बारीकियों से उन चीज़ों को बता पाते हैं जो स्टूडेंट्स लेवल में कंफ्यूजन करती रहती है पर हम समझ नहीं पाते हैं। तो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो और मच। हम यही चाहेंगे कि फिर हम लोग कभी आइए, मतलब हम लोग के इस प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर लेक्चर लीजिएगा। तो डेफिनेटली आई थैंक यू ट्राई माय अगेन, बेस्ट। स्टूडेंट्स की तरफ थैंक से, हमारी तरफ से, हमारे कॉलेज की Thank you, तरफ sir. से, Thank you. डिपार्टमेंट की तरफ से, पीपीएन कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। you so much for giving me this chance, थैंक यू, and I'll थैंक try यू। my level best next time also. Thank you so much. Have a good day.